Hello students. In my first video I explained you about the French Revolution. I explained the French society which was divided into three different states, namely first estate, second estate and the third estate, including the clergy people, the nobles and the peasants. So 90% population was the peasants itself, those who were poor. In between them only, from the third estate only, middle class emerged, who were having the educated persons or doing the jobs or those who were paying the taxes. I explained you about how France becomes a constitutional monarchy. Constitutional monarchy means the rule of king will be there, but in a in a proper with the proper rules set by the constitution itself. So, draft a constitution completed in 1791. Main object was limit the power of the monarch. So, this constitution was introduced just to limit the power of the monarch. Power distributed. So, the powers were distributed. These are the distribution of the power as such we are having right now. The legislative, executive, and the judiciary. These are the different organs of the government. Now, the next topic is France becomes a republic. Republic means it belongs to the public only, people only. So, war against aristocracy. How it will become a republic? How France become republic? First of all, there were wars against aristocracies. Aristocracies means those who were having the monarchical system itself. So, Louis signed constitution in the above mention only, where I told you that the France become constitutional monarchy. So in that only the limit of the power of the monarchy of the Louis 16 was there, and it was signed by Louis 16 himself. So it is also only mentioned here. Louis signed constitution, also entered into secret negotiation with king of Prussia. लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन भी कर दिए, लेकिन चुपके से किंग ऑफ प्रूशिया के साथ में नेगोशिएशन बातचीत भी कर ली. अब वो क्या बातचीत थी? नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया. जो हमारी नेशनल असेंबली थी, अब उसने एक चुपके से क्या प्रूशिया के जो राजा था उसके साथ में उसने एक जो सीक्रेट नेगोशिएशन की है कि वो उसको सपोर्ट करेगा जब भी उसके यहाँ से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कुछ भी बना रखा है, रूल्स बना रखे हैं जो, अगर उसको पसंद नहीं आते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो प्रूशिया का जो किंग है दे विल ऑल्सो हेल्प. सो नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया. अब जो हमारे यहाँ पे जो नेशनल असेंबली बनी थी, national assembly which was made by the people only, in that the sorry people of थर्ड स्टेट, जो हमारी मिडिल क्लास थी उन्होंने बनाई हुई थी नेशनल असेंबली. उन्होंने प्रूशिया के अगेंस्ट में युद्ध घोषित कर दिया. क्लब्स फॉर्म्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज. सो अब क्योंकि हर जगह में बहुत सारा असंतोष फैलने लग गया, जिसकी वजह से people started making clubs only also. So clubs were there, belonged to less prosperous people, leaders Maximilian Robespierre. सो अब एक जो मेंबर है उसमें देखिए क्लब्स बनाए हैं, अलग अलग क्लब की बात हो रही है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्लब आता है दैट इज़ द जैकोबिन क्लब. रोल ऑफ जैकोबिन क्लब. जैकोबिन क्लब का जो हेड था ही वॉज द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी. रॉबेस्पेरी वॉज द हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब. अब उसने क्या किया है? न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंट 21 सितंबर 1792 एबॉलिश मोनार्की डिक्लेयर. अब ये वाले जो हमारी रॉबेस्पेरी आया एक नया रूलर बन के, रूलर तो नहीं हम कहेंगे बट ही वॉज बीन फॉलोड बाय मेनी ऑफ द मिडिल क्लास पीपल. बहुत सारे मिडिल क्लास के जो लोग थे वो उसको फॉलो करने लगे. और ऐसा होता है ना, एक बार जब मेजॉरिटी के लोग किसी चीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे क्या होता है, फ्रांस जो था वो जो लोग उस भारी पड़ने लग गए वो लोग, और वो राजा जो था वो ही स्टार्टेड बिकमिंग वीक. तो डिक्लेरेशन ऑफ फ्रांस एज रिपब्लिक. तो जैकोबिन क्लब की अंडरटेकिंग में जो फ्रांस था उसको रिपब्लिक घोषित कर दिया. रिपब्लिक मतलब लोगों का देश कह दिया उन्होंने. सो एंड ऑफ मोनार्की. अब जो राजा था लुई 16 सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट. अब जो ये नेशनल असेंबली बनी हुई थी, इवन द पावर वॉज डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो जो जुडिशरी थी उसने मोनार्की के जो राजा है लुई 16 को सज़ा भी दे दी, और सेंटेंस टू डेथ मतलब फांसी की सज़ा सुना दी.
क्या कारण हो गया, मतलब फ्रांस जो था पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही बना है, यानी कि राजा के लिए ही वो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, राजा ने अपनी इम्पोर्टेंस देते हुए, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस कोई ज़्यादा कम नहीं हुई है, हाँ उसने अपनी पावर्स को थोड़ा सा लिमिट में कर लिया, तो ऑटोमेटिकली अभी भी राजा का ही रूल चल रहा है। और राजा ने बीच बीच में कॉन्स्पराइसी करके प्रूशिया के राजा के साथ में हाथ मिलाया हुआ है कि कभी भी मुझे अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे सपोर्ट करोगे, सो दैट आई कुड रूल दीज पीपल अगेन, यानी मुझे रूल करने में मेरी प्रिविलेजेस मुझसे छीन ली गई हैं तो वो मुझे वापस मिल जाए। अब उसी समय में, क्योंकि देखो कहते हैं ना, एक बार जब जो लोगों के बीच में असंतोष फैलता है तो वो फैलता ही चला जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लब्स वॉज देयर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्लब आता है दैट इज़ योर जैकोबिन क्लब। सो जैकोबिन क्लब का जो रॉबेस्पेरी जो लीडर था, he became very famous, people started following him, and in the end only monarchy system was ended and Louis 16 was given punishment also, ठीक है। now is one most of the important thing comes, that is the region of terror। एक हिंदी में हम इसको बोलते हैं आंतक का साम्राज्य। आतक, आंतक मतलब डर, खौफ। सो वो किसके अंडर में आया है, रोल ऑफ जैकोबिन क्लब के उसमें। जब जैकोबिन क्लब जो पावर में आया और पावर में आते ही उसने नई नई चीज़ों को चेंजेस करने उसने शुरू किए। नाउ सी द रीजन ऑफ टेरर। रॉबेस्पेरी सबसे पहले उसका जो हेड है, फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल ऑफ पनिशमेंट। रॉबेस्पेरी ने जैसे ही पावर में आया है उसने सिंपल सा कर लिया कि जो मेरी रूल्स को फॉलो करेगा या जो भी मेरे खिलाफ जाएगा, रूल्स को फॉलो करेगा, तो देन ही और शी विल बी द इन फेवर ऑफ जैकोबिन क्लब। और अगर उसकी पॉलिसीज़ को नहीं कोई फॉलो करने वाला है तो उसके लिए पनिशमेंट है। सो एनिमीज, एक्स नोबल्स, क्लर्जीज। अब इसमें क्या हो गया, सबसे बड़े दुश्मन, कट्टर दुश्मन तो उसके कौन बन गए, नोबल्स जो फर्स्ट स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं, क्लर्जीज जो सेकंड स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रिविलेजेस खत्म हो चुकी हैं, लुई 16 खत्म हो चुका है, तो वो सबसे बड़े दुश्मन बन गए इसके, रॉबेस्पेरी के, जो कि आपका जैकोबिन क्लब का टाइम पीरियड है। सो इफ कोर्ट फाउंड गिल्टी दे वर ग्लूटाइंड। अब ये ग्लूटाइंड एक नया टर्म है इसमें। तो कोर्ट, जो उसने कोर्ट भी अपनी बनाई हुई है, रिपब्लिक बनते ही अपनी उसकी कोर्ट बनी हुई है, उस कोर्ट ने अगर किसी के अगेंस्ट कोई चार्ज लगा है और इफ दैट चार्ज इज प्रूव्ड, तो फिर उस पर्सन को ग्लूटाइंड कर दिया जाता था। ग्लूटाइंड हेयर टर्म मीन्स टू डिफरेंट पोल्स एंड इन बिटवीन दोज पोल वन ब्लेड वॉज देयर एंड with the help of that blade the head of the person was being cut off। उसको उन्होंने नाम दिया है ग्लूटाइंड। सो मीट, ब्रेड, राशन, चर्चेज कन्वर्टेड टू बैरक्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज। अब जो पहले की चीज, जो शॉप्स वगैरह थी, जो चर्चेज थे, वो सब उनसे ले लिए गए, क्योंकि अब जो रूल चल रहा है वो है रॉबेस्पेरी का। तो रॉबेस्पेरी ने ये सब चीज़ें उनसे वापस लेके और उनकी जो बिल्डिंग्स थी, बैरक्स बना दिया उनको, गवर्नमेंट ऑफिसेज बना दिए, नो ग्रेडेशन इन एड्रेसिंग एटसेट्रा। तो अब उनमें कोई उनको सहूलियत, कोई इंपॉर्टेंस उनके लिए अब नहीं रही है, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट वन इज डायरेक्टरी रूल। सो द न्यू कंसेप्ट वॉज देयर, डायरेक्टरी रूल। नो फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब। अब देखो, जब कहते हैं ना कि कोई भी, अगर आप मान लो आप बहुत अच्छा काम करके पावर में आए हो, बट अगर आप अच्छा काम कंटिन्यू नहीं करते हो, इफ़ यू स्टार्टेड डिप्रेसिंग समवन, तो एक ना एक दिन आपका अंत हो जाता है। तो सेम थिंग हैपन हियर ऑल्सो, डायरेक्टरी रूल फॉलोज नाउ। अब ये एक नया सिस्टम आया फ्रांस के अंदर। फिर एक बार समझ लो सभी, फ्रांस में सबसे पहले है आपका लुई 16 मोनार्कियल सिस्टम, ठीक है। मोनार्कियल सिस्टम के बाद में जो मिडिल क्लास थे, दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द नेशनल असेंबली। उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन भी मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन रहा। उसके बाद आए हमारे जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब ने अपने आप को जुडिशरी में, सब चीज़ों में उसमें कन्वर्ट किया है कि सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर होनी चाहिए, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज देयर। पर अब वो भी ज़्यादा देर नहीं चली, अब आया फिर से डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल, अब देखिए इसमें क्या है, फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, वेल्दियर मिडिल क्लास सीज पावर। अब जैकोबिन क्लब क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि जो मिडिल क्लास में जो ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, उन्होंने रॉबेस्पेरी से उसकी पावर को छीन लिया, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस। अभी फिर एक थर्ड टाइम एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड राइट टू वोट हु डिड नॉट ओन प्रॉपर्टी। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई उन्होंने और डाल दी कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है,
पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा हुआ था कि जिसके पास जो टैक्स देता है और 3 दिन की लेबर की वेजेस के अकॉर्डिंगली अगर वो अपने टैक्स दे रहा है तो दैट पर्सन विल बी इंक्लूडेड और दैट पर्सन विल बी गिवन द राइट टू वोट। लेकिन अब यहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है दैट पर्सन कैन नॉट वोट। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर देयर, तो इलेक्टेड यानी कि चुने गए हैं इलेक्शंस के थ्रू, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को चुना गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आपके होते हैं जो आपके लीडर्स हम जिनको बोलते हैं आज की डेट में। सो अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ 5 मेंबर्स, उन्होंने एक डायरेक्टरी, एक जो रूलिंग पावर है उसको चुना और एक अपॉइंटमेंट कर दी, उसमें 5 मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव के। एग्जीक्यूटिव जिसके हम कहते हैं जो रूल्स चला रहे होते हैं, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें सो आर ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर द एग्जीक्यूटिव। नाउ डायरेक्टर ऑफन, और आप ये भी कह सकते हैं इसमें जो हमारे लीडर्स हैं दे आर ऑल्सो द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो डायरेक्टर ऑफन क्लैश्ड विद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके साथ में ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते थे इनका क्लैश हो जाता था। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई रूल बनाने हैं तो उस रूल्स में वो आपस में कई बार भिड़ जाते थे। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गेव राइज टू मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। सो इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, और जो आ भी रहे हैं जो लेटेस्ट आए हुए हैं वो आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं वो दे आर फाइटिंग विद ईच अदर ओनली। Legislative those who are making the laws, executive those who were following those, or those who were helping to follow those rules by the people। तो दोनों ही आपस में लड़ते जा रही हैं। तो इसका फ़ायदा हमेशा होता है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर हमेशा मज़ा लेता है। सो that's the thing only that Napoleon Bonaparte also got a chance to have, he was a military dictator only, military person was only he, but अब उसने इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाया एंड ही केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अभी आप देखिए आपकी पीपल डेमोक्रेसी आई, रिपब्लिक आया, रिपब्लिक के बाद में एक तरह से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है एक आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी है। लेकिन उसके बाद से फिर से मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाला रूल जो था इट स्टार्टेड। And now how it changes in French government from Louis 16 to Napoleon। ये सारा भी इसमें दिया हुआ है कि कैसे कैसे चेंज हुआ। सी लुइस 16 एब्सोल्यूट मोनार्क था। एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब सिर्फ उसी का काम रूल चलता था। उसके बाद आई नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसमें भी उसके रूल किसके चल रहे थे, मोनार्की यानी राजा के लुइस 16 के ही चल रहे थे। देन कम्स योर नेशनल कन्वेंशन, उसमें हमने रिपब्लिक का नाम दे दे कि लोगों की गवर्नमेंट है, वो भी फेल हो गई। तो फिर आया जैकोबिन क्लब, रॉबर्सबेरी के उसमें डिक्टेटरशिप चली उसकी, वो भी फेल हो गई। तो उसके बाद डायरेक्टरी आई, डायरेक्टरी में 5 मैन रूल्ड, जो ऊपर मैंने बताया 5 मेंबर्स है उसमें रूल करते हुए, वो भी ज़्यादा देर नहीं चल पाई, 95 से 99 में चली। और फिर आया हमारा नेपोलियन इलेक्टेड एम्परर, उसको लोगों ने चुन के, इलेक्टेड नाम वर्ड यूज़ किया है, दैट मीन्स कि लोगों ने उसके फेवर में वोट दिया है और उसके बाद उसको एम्परर घोषित कर दिया हुआ है। तो द नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द थिंग्स